Namaste learners, this is Yuvraj Chaturvedi and I am from Chill with Chatur. We are back with 2 long years से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज हम लोग वापस से अपना चैनल फिर से फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग एक मैथ्स के टॉपिक के साथ चालू करेंगे क्लास 10 का, जो होगा पॉलीनॉमियल्स. In the previous classes, we have learned what is a polynomial. What is a polynomial? It is anything in the form of an x to the power n till plus a3 x to the power 3 plus a2 x to the power 2 plus a1 x plus a0. And we know we have studied about the classification of polynomials in our previous classes. Classification. Polynomials can be classified in two categories. One is based upon the degree and other is based upon its number of terms. If the degree is 1, we call it as a linear polynomial. If the degree is 2, we call it as a quadratic polynomial. If the degree is 3, we call it as a cubic polynomial. If the degree is 4, we call it as a biquadratic polynomial. Now for the same thing, if the terms are 1, we call it as a monomial. If there are 2 terms, we call it as a binomial. If there are 3 terms, we call it as a trinomial. If the number of terms are 4, we call it as a quadrinomial. With finding of zeros of quadratic polynomial. So, in previous classes we had some equations such as 6x plus 3 is equals to 0, and the 0 of this equation would be 6x is equals to transpose plus 3 on the RHS, and then it becomes minus 3. Then x is equals to minus 3 divided by 6. Keep 3 in brackets, 3 ones are 3 twos are. Therefore x is equals to minus 1 by 2. But in our current class, we would learn about finding the zeros of a quadratic polynomial, which we would denote the first zero as alpha and second zero as beta. And they will also consist of verifying the zeros with the coefficients of the different terms of a polynomial. Alpha plus beta would be, alpha plus beta would be minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, and then alpha into beta would be equal to constant term of the polynomial, quadratic polynomial, divided by the coefficient of x square. Here we have a quadratic polynomial which goes something like this: 3x square plus 5x minus 2, and they have said us to find alpha, the first zero, and beta, which is the second zero. We have learned factorization of a quadratic polynomial in class 9th and in class 8th. So let us factorize it. 3x square plus 6x minus 1x minus 2. Take 3x square plus 6 as one term and minus 1x minus 2 as the second term. So in the first term we have 3 common. So let us take 3x common. 3x of x plus 2. Then here we have minus 1 common. Minus 1 of x plus 2. Then our factors would be 3x minus 1 and x plus 2. So our alpha would be 3x is equals to plus 1. Then x is equals to 1 by 3. 1 divided by 3. Then beta would be x plus 2 is equals to 0
then x is equals to minus 2 because plus 2 gets transposed on the RHN and becomes a negative term. Minus 2. Sorry. Minus 2. Yeah. So our alpha is something like this and beta is something like this. So let us take an example. We have finished our question, but let us verify the sum and product of the zeros with the coefficients of the given polynomial. As we know, alpha plus beta is equals to minus of b by a. Let me make it clear. The coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and the constant term given is c. So what is alpha? Alpha is 1 by 3 plus beta, that is minus 2, is equals to minus of 5 divided by what is a? 3. Yes. So 1 by 3 minus 2 into 3 by 1 into 3 is equals to minus 5 by 3. So this becomes minus 6, that is minus 6 plus 1 divided by 3 equals to minus 5 by 3. So minus 5 by 3 is equals to minus 5 by 3. And here we have verified the sum of our zeros with the coefficients of x and x square. Let us verify the coefficients with the constant term, that is, wait, let me specify, alpha into beta is equals to c by a. C is the constant term which is minus 2 and a is the coefficient of x square. So what is our alpha? Alpha is 1 by 3 into beta. Beta is minus 2. Always keep the negative term in brackets. What is c? C is also minus 2 divided by what is x square, the coefficient क्या है? 3. So minus 2 by 3, sorry, minus 2 by 3 is equals to minus 2 by 3. VERIFIED. Verified. We have verified the product of the zeros and the sum of the zeros. Here we have a question which goes something like x square minus 2x minus 8. We need to find alpha and beta. Also verify. What do you mean by verification? Verification means sum and product of the zeros whom we verify with the coefficient of x square, x and constant term. चलो आंसर हमारा यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को a क्या दिया हुआ है? a is 1, b is minus 2, sorry for the handwriting, c is equals to minus 8. चलो अब हमको इसको करना है फैक्टराइज। तो x स्क्वायर कैसे किया जाएगा फैक्टराइज कि माइनस 8x आ जाए माइनस 2x के फैक्टर्स में, मतलब कि जैसे माइनस 8x के फैक्टर्स होने चाहिए जिनका सम माइनस 2x है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों का सम होता है माइनस 8x स्क्वायर, सॉरी प्रोडक्ट होता है माइनस 8x स्क्वायर और सम होता है माइनस 2x। तो x ऑफ x माइनस 4 प्लस 2 ऑफ x माइनस 4, इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 ऑफ x प्लस 2। तो अल्फा वैल्यू होगी प्लस 4, बीटा वैल्यू होगी माइनस 2। अब हमको करना है वेरीफाई। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देयरफॉर हमारा अल्फा क्या है? हमारा 4, तो 4 प्लस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी क्या है हमारा? माइनस 2, ए क्या है? 1, माइनस 2 ब्रैकेट्स में रखेंगे
1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 इज इक्वल्स टू -2। प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोस हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। देयरफॉर हमारा अल्फा क्या है, अल्फा इज 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8 बाय, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमसे, यहाँ होगा माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। हाँ, इधर वापस आते हैं, -8/1, तो ये होगा 4 इंटू -2 होता है -8 इज इक्वल्स टू -8। हमारा प्रोडक्ट भी हो गया वेरीफाइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा। नाउ वी हैव समथिंग विच इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा एंड दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। हम लोग को क्या फॉर्म करना है, हम लोग को फॉर्म करना है एक पॉलिनोमियल इससे। तो इसका ये जब पैटर्न दिया हुआ है क्वेश्चन का, पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो जनरल फॉर्म होता है वो होगा x², नोट इट डाउन कर लेना, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो दिया रहेगा दैट ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको लिख लो जनरल फॉर्म, ठीक है, ये आपने लिख लिया जनरल फॉर्म। अब एक सम कर लेते हैं। यहाँ हम लोग का अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा हमारा वो हम लोग को दिया हुआ है -2 और अल्फा इंटू बीटा वो हमको दिया हुआ है -8, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज करेंगे हम लोग, x² माइनस हम लोग का अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ पे हमको अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -8। तो हम लोग इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो होगा x² प्लस 2x माइनस 8। ये आ गया हम लोग का पॉलिनोमियल। ये चैप्टर में ये आज अब 2023 के पोर्शन के हिसाब से इतना ही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तीनों चारों पैटर्न जो भी मैंने पॉलिनोमियल्स का आपको बताया उससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चंस। यहाँ हम लोग के पास एक क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये हम लोग का p ऑफ x है। हमको p ऑफ -1 दिया हुआ है, हम लोग को हम लोग को p ऑफ -1 निकालना है, दिया नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर क्लास 9th में हम लोग ने पढ़ा था कि p ऑफ -1 को हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हर जगह। तो ये भी उसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो वैल्यू निकलेगी वो 0 से 9 के बीच में ही होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम करते हैं। गिवन, पहले सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब p ऑफ -1 को क्या करना है, हर जगह x की जगह हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 ऑफ -1 स्क्वायर माइनस 3 ऑफ -1 प्लस 4। तो -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे 2 ऑफ 1 माइनस 3 प्लस, यहाँ -3 और -1 जो है वो है +3 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या हुआ 2 प्लस 3 प्लस 4? 3 प्लस 4 होगा हमारा 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9।
9 हमारा आंसर। जैसे कि मैंने बोला था इसका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। एक इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है x² + 4x + 3 हम लोग का p of x है। फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 + β by alpha and 1 + alpha by beta। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करके, ये जो हमारा p of x दिया हुआ है इसको हम फैक्टराइज करके हम लोग का जो अल्फा और बीटा रहेगा हम वो निकालेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना तो हम कैसे करेंगे, अब x², थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि स्पेस मिले, x² + 1x + 3x + 3, ये होगा हमारा, यहाँ x कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो x of x + 1 + 3 of x + 1। तो हमारे फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे x + 1 of x + 3। तो अल्फा वैल्यू इज -1, बीटा वैल्यू इज -3। तो हमारे दूसरे पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं वो 1 + β by alpha और 1 + alpha by beta। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फट से कर लीजिए। तो हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे पार्ट 2। क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो क्या है, हमको निकालेंगे 1 + β by alpha की वैल्यू। सबसे पहले बीटा बाई अल्फा, यहाँ भी 1 रहेगा, इंटू अल्फा, ऊपर भी इंटू अल्फा, इज इक्वल्स टू अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। और दूसरा हमारा क्या होगा, 1 + अल्फा बाई बीटा, तो इंटू बीटा, नीचे 1 इंटू बीटा, ये भी होगा अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। तो अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। इनकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा हमारा क्या है -1 और बीटा हमारा -3, तो -1 - 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, अल्फा इज -1, तो -1 इज इक्वल्स टू -4/-1, माइनस कट 4, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 4। और अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, अल्फा + बीटा, फिर से सेम चीज़ है, तो ऊपर हम लोग ऑलरेडी -4 लिख देंगे और नीचे बीटा -3, यहाँ माइनस कट 4/3, ये होगा 4/3। मैं बोल रहा हूँ लंबा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा अल्फा + बीटा की हमको वैल्यू निकालनी है ये पॉलिनोमियल के लिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं α1 + β1 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अल्फा + बीटा हमको मिल गया। अब अल्फा + बीटा, अल्फा क्या हमारा, अल्फा है -4, नहीं अल्फा है हमारा 4, तो 4 + 4/3 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 + 4 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 3। अल्फा इंटू बीटा करना है। अब अल्फा क्या है हमारा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 4 इंटू 4/3 इज ऑल्सो 16/3। अल्फा और हमारा अल्फा + बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे इसका पॉलिनोमियल। ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे अपन। तो इसका x² माइनस अल्फा + बीटा ऑफ x + अल्फा इंटू बीटा, तो x² क्या हमारा, सॉरी x² नहीं, x² माइनस 16/3 ऑफ x + 16/3
3। इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन और चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी के क्वेश्चंस हैं जैसे के मॉडल हो गया, फिर ए बी मॉडल हो गया, हमें आगे के वीडियोस में बनाएंगे।